diversity kind of a thing, but actually it is not. Anybody can participate. Okay, so please remove that from your mind. Okay, so in GSOC, so the concept is very simple. As soon as you register and the program begins at, I guess, 1st of March, right? So in the 1st of March, you actually, this project section, right? So you actually get different projects here. So that has not been listed here. Okay. So you get different projects and you can contribute in any one of them. Okay. So the thing is that which project should you choose and why should you choose, right? So whenever you will whenever you will see a project here, you will be having a GitHub link to that project. So suppose this is a project which I contributed last year. Okay, so this project was a very simple project to improve the competitive coding of normal, like how to improve our competitive coding skills. Like not exactly like it was a what do we say, assisting tool for your for anyone who is doing competitive coding. Okay, so it was not that I knew everything about this project, that's why I chose this project, or it was not like I knew everything or every software which was every tool which was being used in this project. Why I chose this project? Because I was uh, motivated through the idea. Okay, so it's important that you choose the project based on your motivation instead of going for the uh, what do we call it, like instead of going for how many points do you get and how many scores do you earn by contributing to a certain project or a certain PR. Okay, so this is actually very important. When I'm saying points and score, I will come back to it later. Like in GSOC, we have some point score and everything, right? So we will come back there. Okay. So and after you start competitive code, you start this open source contributions. This goes on till your 31st May, and after that you get the result. Okay, so but just a minute, let me just drink some water. Yeah, so where I will say, yeah, so you get a 3 months time to code. Yeah, so let me just share my journey, that what happened during those 3 months. So when I participated in Girl Scout Summer of Code, I was like nowhere near to open source. Right, means I didn't have any much knowledge of PR. To be very honest, I didn't know what is a pull request is and why do we raise a pull request. Right, we can directly commit. Okay, so I have no idea. Like why do we need to make a pull request? Why open source? Why should I contribute for somebody's project for free? I mean, see, whenever you are contributing to open source projects, it's actually suppose this project. It's this project is of Rishi, right? So I don't know him. He's not my friend. He's just a developer from a different place of the world. Okay. So why should I contribute to his project? Like, what is my benefit in that? Why I do that? I didn't have any knowledge. I was just blank when it was just a dream that I will contribute to open source projects and also thing. I didn't know how to raise the issue, but after completing GSOC, like my view of what is open source is actually it was like it was foggy and it suddenly became crystal clear what is open source, why should we contribute, and from there till now I have contributed to Electron, I have contributed to Cloudflare, I have I've I own some of the open source projects which are there, which have a monthly 500 downloads or something like that. So this is the advantage you get from uh, Girl Scout Summer of Code. Everybody must have heard about GSOC, sorry GSOC, right? Google Summer of Code. So Google Summer of Code is a
very high level thing. So if you want to get selected as a participant in just to get selected as a participant in Google Summer of Code, you need to have some knowledge, have some knowledge about open source. You need to have some experience in open source, right? You need to have some knowledge about the project for which you are applying. But what I can say that Girls Give Summer of Code is your first step towards Google Summer of Code. If you want to crack Google Summer of Code, if you want to contribute to some awesome open source projects in through Google Summer of Code and finally get an offer from Google, then Girls Give Summer of Code is your first step to go. So let's talk about how does Girls Give Summer of Code actually goes around in 3 months. Okay. So after 25th Feb, okay, you will get this Excuse me, project sir. check. सर Yeah. सॉरी टू इंटरप्ट बट आई थिंक अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज़ करेंगे तो ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफर्टेबल होंगे. ओके, तो आप लोग क्या इंग्लिश में कंफर्टेबल? अच्छा ठीक है, मैं हिंदी में कर लेता हूँ. ओके ग्रेट. तो थैंक यू देखो, फॉर कंसिडरिंग. हाँ अरे ठीक है ठीक है. मैं तो देखो हम लोग जब 25th से जब स्टार्ट होता है, ठीक है, गर्ल्स के समर ऑफ कोर्स, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं. ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स में क्या क्या लिखा रहता है, तो वी गेट जनरली हमें एक नेम मिलता है प्रोजेक्ट का. ठीक है, एंड हमें मिलता है कि वो प्रोजेक्ट एक्चुअली क्या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कर रहा है एंड वो क्या क्या टेक स्टैक पे काम कर रहा है. राइट, जैसे कि एक नॉर्मल नोड जेएस का प्रोजेक्ट पकड़ो तो वहाँ पे लिखा रहेगा नोड जेएस, मोंगोडीबी, Express.js या फिर React.js रहा तो React.js, Tailwind CSS, Smart Stack. So these things are there. You know the tech stack, you know the project, and उस पे कितने contributors, and we also get the GitHub link to that project. Okay. So ये जो 25 से जो फर्स्ट मार्च तक का जो टाइम है ना, दिस इज एक्चुअली वेरी क्रूशियल, क्योंकि यहाँ पे सी आफ्टर फर्स्ट मार्च क्या होता है, पीपल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग. ओके, सो बिट फ्रॉम 26, ठीक है, 26 से फर्स्ट मार्च तक आपको जो टाइम मिलता है ना, आप सारा प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो एंड देख सकते हो कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको लिए ज्यादा सूटेबल है. ओके, मतलब सी कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जो कि जिनके आपको जिनका जो टेक स्टैक है उसके लिए आपके पास कोई आइडिया ही नहीं होगा. मतलब सपोज एक प्रोजेक्ट है जिसमें ट्रफल यूज हो रहा है, ठीक है, एंड आपको ट्रफल का कोई आइडिया नहीं है, व्हाट इज ट्रफल, राइट. बट स्टिल अगर उसमें एक दो भी टेक स्टैक कॉमन है ना आपका, जैसे कि उसमें पाइथन यूज हो रहा है एंड यू नो पाइथन, ओके, सो यू कैन जस्ट गो एंड एक्सप्लोर दैट प्रोजेक्ट एंड आप लोग देख सकते हो कि आप लोग उस पर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो. ओके, सो ये जो टाइम है, I will suggest you utilize this time to select the projects. तो बहुत बहुत सारे projects रहते हैं, कम से कम if I say more than 100 kind of a projects will be there from where you will be able to choose, because last year 100 था, तो मतलब more than 100 था, तो इस year I don't think it will degrade. So obviously there will be many projects to which you can contribute. So choose the project wisely based on your interest and not कि आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट चूज नहीं करना है जहां आपको सब कुछ आता है. अगर आपको उस प्रोजेक्ट में सब कुछ आता है तो आपका जो लर्निंग कर्व होगा वो नहीं होगा. यू आर इन गर्ल्स के समर ऑफ कोड, आई हैव सीन पीपल जो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको पता है, अगर आप किसी प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन भी अपडेट करते हो, दैट्स ऑल्सो काउंट्स एज अ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, राइट. बट अगर आप किसी का जस्ट जाके डॉक्यूमेंटेशन में नॉट इवन यू आर सॉल्विंग एनी, कुछ गलत लिखा था, कोड में कुछ और है एंड वहां पे कुछ और लिखा हुआ है, यू आर नॉट ऑल्सो सॉल्विंग इट, आप कुछ ग्रामेटिकल एरर सॉल्व कर रहे हो जाके, ठीक है, एंड आपको उसके बदले ओपन पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है. तो ये इससे आपको सीखोगे नहीं. ओके, ओपन सोर्स गर्ल्स के समर ऑफ कोड को आपको ऐसे नहीं देखना है कि आपको टॉप 5 में आना है या टॉप 10 में आना है या टॉप 15 में आना है. ट्राई टू लर्न एज मेनी थिंग्स एंड ट्राई टू एक्सप्लोर एज मेनी प्रोजेक्ट्स एज यू कैन, बिकॉज आप जितना प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर करोगे ना, आप उतने जो रियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी है आप उससे और क्लोज जाते जाओगे. बिकॉज कॉलेज लेवल पे हम लोग जो यूज करते हैं जो टेक, रियल वर्ल्ड में जो इम्प्लीमेंट होता है, दोनों में थोड़ा सा गैप है, ठीक है. मतलब द थिंग इज सेम बट देयर इज सम आर्किटेक्चर थिंग आ जाते हैं, कुछ स्केलिंग का इशूज आ जाते हैं. तो आप जितना प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करोगे ना, हर एक प्रोजेक्ट का अलग अलग आर्किटेक्चर रहेगा, अलग अलग प्रोसेस रहेगा. तो the more you get accustomed with different kind of workflows, the more you will be closer to real world technologies. So I would suggest कि आप ये जो time है, this time you choose your projects wisely
एंड आफ्टर दैट यू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग। तो कंट्रीब्यूशन कैसे करना है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कैसे करने के लिए, सपोज दिस इज अ प्रोजेक्ट, सॉरी, सो सपोज दिस इज अ प्रोजेक्ट जिसमें आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप जैसे इस पे आओगे, आपको इधर एक इश्यूज का टैब दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज, तो इसमें क्या होता है, जो लोग प्रोजेक्ट एडमिन्स होते हैं, ठीक है, इन जी कर्स के समर ऑफ कोड, यू यू विल गेट फोर टाइप्स ऑफ पीपल्स, ओके। एक पार्टिसिपेंट जो आपके जैसे ही होंगे, दे आर फर्स्ट टाइम कमिंग टू सम ओपन सोर्स प्रोग्राम। सेकंड होंगे प्रोजेक्ट एडमिन। सो प्रोजेक्ट एडमिन क्या होता है, जो जैसे कि ये प्रोजेक्ट है, तो इसका प्रोजेक्ट एडमिन वाज ऋषि। सो वो होता है जो कि प्रोजेक्ट को मेंटेन करता है, ओके, जिसका बेसिकली प्रोजेक्ट का आइडिया होता है, ओके। देन वी हैव मेंटर्स। सो मेंटर्स क्या होंगे, आपको कुछ भी ओपन सोर्स के बारे में समझ नहीं आ रहा है, आपको ये समझ नहीं आ रहा कैसे पीआर रेस करना है, आपको ये समझ नहीं आ रहा कैसे इशू को खुद के लिए असाइंड करना है, ठीक है। तो दिस मेंटर्स विल बी देयर, एंड ये आपको रेगुलरली अपडेट्स देते रहेंगे कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। आई विल शो यू गाइस दैट आल्सो, ओके। तो एंड द फोर्थ पीपल विल बी द एडमिन्स, जो क्या कहते हैं, प्रोग्राम एडमिन्स होंगे। प्रोग्राम एडमिन इन दिस, जो लोग ये पूरा गर्ल्स के समर ऑफ कोड प्रोग्राम को मतलब क्या कहते हैं, ओवरसी करते हैं, पूरा चीज देखते हैं, ठीक है। सो जब भी आप आओगे इशूज में, तो जो प्रोजेक्ट एडमिन्स होते हैं, उन्होंने पहले से ही 5-6 इशूज ऑलरेडी बना हुआ रहेगा, ठीक है। सो आप किसी भी, सपोज अ, ये वाला जो इशू है, राइट, डिस्कॉर्ड इशू इनवैलिड मेंशन्ड इन ग्रेटमेंट, ठीक है। तो ये वाला जो इशू है, यहाँ पे ये असाइन किया हुआ है इनोवेशन प्लेटफॉर्म को, राइट। क्यों असाइन किया हुआ है, इसने यहाँ पे पूछा होगा कि आई वुड लाइक टू वर्क ऑन दिस इशू अंडर GSOC 2021, कैन यू प्लीज असाइन इट टू मी। तो फिर जो प्रोजेक्ट एडमिन होगा, वो तुमको ये असाइन कर देगा। सो एक कॉमन मिस्टेक था जो पिछले साल हम लोग के टाइम पे बहुत जनों ने किया था, राइट। वो लोग इशू देखते थे एंड सीधा उस पे काम करने लगते थे। ये नहीं करना है। until and unless the issue is assigned to you, don't start working on that issue. उससे क्या होगा कि सपोज आपने सोचा कि ये इशू तो अच्छा है, ये मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। बट कोई और बंदा भी है, वो भी यही चीज सोच रहा है कि ये इशू तो मेरे को पसंद है, मैं भी इस पे काम करूंगा। तो आप लोग दोनों सेम चीज बनाओगे, एंड फिर क्या होगा कि सेम चीज तो दो बार मर्ज नहीं कर सकते ना, एक ही बार मर्ज होगा। तो उसका कोड मर्ज, जिसका पहले आएगा पीआर, उसका कोड मर्ज हो जाएगा, एंड फिर आपका जो मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगा। सो जब तक आपका ये असाइंड नहीं हो रहा है कोई भी इशू आपको, तब तक आप उस पर काम मत कीजिए। दिस इज अ सजेशन। एंड कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। एंड ओपन सोर्स में कोई आपका मैनेजर नहीं है। देर इज नो वन एबव यू और नो वन बिलो यू, ओके। एवरीबडी इज ऑन द सेम फ्लैट एंड प्लेन। लाइक ऐसा नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट एडमिन है, सो ही इज एबव यू, वो जो बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट, ओके। सो सबको ये सेम प्लेन पे है, ठीक है। अगर वो आपको कुछ बोल रहा है, तो वो ये नहीं है वो आपको ऑर्डर दे रहा है, ही इज सजेस्टिंग यू समथिंग। जैसे कि आपने एक पीआर डाला, तो आपके पीआर पे वो बोला कि ये पीआर में ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का एरर है, ठीक है। तो वो ये नहीं वो बोल रहे कि आपका फॉर्मेट गलत है, वो ये बोल रहे कि आपका फॉर्मेटिंग मेरे को गलत लग रहा है। इफ यू आर सही, तो आप उसको यू कैन जस्ट कमेंट इट आउट एंड चैट विद हिम। सो एंड ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक इशू असाइंड हुआ है, ठीक है, तो इट डज नॉट मीन कि आपको वो इशू एक दिन में कंप्लीट करके उसका पीआर डालना होगा, या 2 दिन में, या 3 दिन में, ओके। सो यू कैन टेक 1 वीक, यू कैन वेट 2 वीक। बट आपको क्या करना, अगर बाय एनी चांस अगर आपको बहुत टाइम लग रहा है एक पर्टिकुलर इशू में, एंड प्रोजेक्ट एडमिन को लगता है कि आप, प्रोजेक्ट एडमिन को तो नहीं पता है ना कि आप उस पर कंटिन्यूअसली काम करें, तो ही में आस्क यू इन कमेंट्स की व्हाट इज द अपडेट एंड ऑल्सो थिंग। तो वो आप उसको दे सकते हो कि हाँ मैंने इतना काम किया है, इतना बचा है, एंड समथिंग लाइक दैट, ओके। सो अदरवाइज क्या होगा कि सपोज आपने एक इशू अपने नाम पे असाइन तो करवा लिया, फिर आप भूल गए, आप वो इशू पे काम ही नहीं कर रहे हो, तो वो इशू क्या है, उस प्रोजेक्ट पे पड़ा ही रह जाएगा। तो वी नीड्स टू ऑल्सो चेक कि आप काम कर रहे हो, वरना वो किसी और को वो इशू असाइन कर देगा। सो सबसे पहले आपको इशू असाइन करवाना है खुद खुद पे। एंड आफ्टर यू गेट असाइन, मतलब जब आपको इशू असाइन हो गया, ओके, देन यू कैन फॉर्क द रेपो, ठीक है। तो जैसे आप फॉर्क करोगे, तो मेरा फॉर्क किया हुआ है, ठीक है? तो आपका एक कॉपी बन जाएगा, ठीक है। देन यू कैन वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू चेंजेस, मेक द चेंजेस हियर,
एंड देन यू नीड टू रेज अ पुल रिक्वेस्ट. तो पुल रिक्वेस्ट कैसे रेज करना है? यू कम बैक टू दिस रेपो. आप यहाँ पे एक न्यू पुल रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो विथ वॉट एवर चेंजेस यू हैव. ओके. सो दिस इज बेसिकली द फ्लो दैट एक प्रोजेक्ट पे आप कैसे कंट्रीब्यूट करते हो. ठीक है. अब हम लोग आ जाते हैं कि जीसॉक में पॉइंट सिस्टम. जब भी मैं इतना देर से बोल रहा था देयर इज पॉइंट, देयर इज पॉइंट, देयर इज पॉइंट, तो व्हाट इज दिस पॉइंट सिस्टम? सो पॉइंट सिस्टम ये है कि जीसॉक पे वी हैव फोर, मतलब हमारे लास्ट ईयर 4 लेवल था. ठीक है. लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. ओके. सो व्हाट वाज लेवल 1? लेवल 1 वाज बेसिकली जहाँ पे आप कोई भी चेंजेस करते हो. ठीक है. मतलब एक छोटा सा भी, अगर आप एक सेमीकोलन भी किसी प्रोजेक्ट में जाके ऐड कर देते हो ना, दैट इज अ लेवल 0 कंट्रीब्यूशन. ठीक है. या फिर आप एक ग्रामेटिकल एरर ठीक करो, अब एनीथिंग यू कंट्रीब्यूट, एनी स्मॉल थिंग, दैट इज अ लेवल 0. ओके. लेवल वन क्या था? आप एक मेजर डॉक्यूमेंटेशन अपडेट कर रहे हो. सपोज एक पूरा फीचर था जिसका डॉक्यूमेंटेशन था ही नहीं. ठीक है. फॉर सम रीजन, तो आपने क्या किया, आपने पूरा उस फीचर का डॉक्यूमेंटेशन ऐड किया रेपो के अंदर. सो दैट इज अ लेवल 1. उसके लिए आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स. ओके. देन वी हैव लेवल 2. तो लेवल 2 वाज जहाँ पे आप माइनर कोड चेंजेस कर रहे हो. आपने एक फंक्शन ऐड किया, आपने एक वैलिडेशन ऐड किया रेपो में, आपने सपोज कर लीजिए कुछ एज केसेस हैंडल नहीं थे, आपने वो एज केसेस हैंडल किया, तो उसके लिए आपको 15 पॉइंट्स मिलते हैं. एंड व्हाट इज लेवल 3? लेवल 3 इज बेसिकली जहाँ पे आप क्या कहते हैं, एक बड़ा फीचर ऐड करते हो या फिर एक बहुत बड़ा बग फिक्स ऐड करते हो जिसके लिए पूरा वर्क फ्लो में चेंज करना पड़ा. राइट. सो इस तरह से 5 पॉइंट, 10 पॉइंट्स, 15 एंड 25 करके डिवाइडेड था. लेटर ऑन आई गेस इट वाज अपडेटेड टू 5, 10, 25 एंड 45. या 5, 10, 25 एंड 45. इसके कुछ कुछ इश्यूज हुए थे इंटरनली विद इन जीएसऑल्व, सो उसकी वजह से ये अपडेट हुआ था. तो उसके लिए आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो आप लोग के टाइम पे कुछ और भी हो सकता है. सो ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. तो जब भी आप एक पीआर रेस करते हो, ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं मेरे पीआर इस रेपो में, बोलते बस तो मैंने 88 पुल रिक्वेस्ट किए थे इस वाले रेपो पे. ठीक है. ड्यूरिंग दिस दोस 3 मंथ्स. ओके. सो जो भी आपका पुल रिक्वेस्ट होता है उसमें जो प्रोजेक्ट एडमिन होता है, ठीक है, वो एक जीएसऑक का लगाता है लेवल, एंड एक जो भी लेवल का अपने मतलब उसको जो लगता है कि आपका ये जो कमिट पीआर है, दिस गोज फॉर लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3. तो जैसे कि ये एक क्या कहते हैं, मैंने क्लस्टरिंग ऐड किया था, तो दैट वाज अ लेवल 3 पीआर. तो उसने मेरे को एक लेवल 3 का बैच दिया यहाँ पे. एंड बेस्ड ऑन दिस आपका वो टोटल पॉइंट्स काउंट होते हैं एट द एंड ऑफ द डे, जिसके बेसिस पे आपकी रैंकिंग होती है. ठीक. सो दिस इज मोरलेस हाउ द जीसॉक थिंग गोज. तो जब भी आप, जैसे आप जीसॉक के एज अ पार्टिसिपेंट रजिस्टर होते हैं, तो यू गेट एडेड टू अ डिस्कॉर्ड चैनल. ओके. सो इस डिस्कॉर्ड चैनल पे आते हैं हम लोग. वन सेकंड. ओके. सो whenever as soon as you are added to a discord channel, तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक जनरल चैनल होता है. ठीक है. यहाँ पे आप लोग मतलब दिस इज अ जनरल चैनल एंड देयर इज दिस इंट्रोडक्शन चैनल वेयर एवरीबॉडी इंट्रोड्यूसेस योरसेल्फ. ओके. सो यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ अनाउंसमेंट्स रिसोर्सेज में बेसिकली, सो जो हमारे मेंटर्स होते हैं, मैंने कहा था गर्ल्स के समर ऑफ कोड में यू आल्सो गेट मेंटर्स. ओके. तो ये मेंटर्स कीप ऑन गिविंग यू रिसोर्सेज ऑफ हाउ टू क्या कहते हैं, कैसे पीआर बनाना है, कैसे नो हाउ टू रेज एन इशू, हाउ टू क्रिएट एन इशू, हाउ टू रेज अ पीआर. ये लोग आपको कंटिन्यूअसली इस चीजों के लिए रिसोर्सेज देते रहते हैं. तो अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, एकदम जीरो आइडिया है व्हाट इज कोडिंग, आपको कोडिंग डेवलपमेंट का भी जीरो आइडिया है, देन ऑल्सो यू कैन कम एंड पार्टिसिपेट इन गर्ल्स स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड. एंड you can ask for this mentors. मतलब mentors आपको, मतलब they are there just to help you. मतलब उन्हें कुछ in return नहीं मिल रहा है, वो लोग बस वहां पे हैं just to help you guys.
तो आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी, कि हाउ, मतलब देयर इज नो सेम इन आस्किंग देयर, लाइक एवरीबॉडी इज देयर टू हेल्प यू. सो आप उन्हें कुछ भी पूछ सकते हो, एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू गाइस विद ऑल द काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज दे गेट. ओके, इवन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज एंड एवरीथिंग गेट्स पोस्टेड. पिछले बार का जो लीडर बोर्ड था गर्ल्स के समर ऑफ कोड का, दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ, क्या कहते हैं, एक ओपन सोर्स, मतलब वो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी उसी का पार्ट था. तो वो प्रोजेक्ट भी हम ही लोग बनाए थे, मतलब वी वेर द कंट्रीब्यूटर्स टू द लीडर बोर्ड. तो द लीडर बोर्ड जहाँ पे आपको वो नाम दिख रहा है, या पिछले बार का जो गर्ल्स के समर ऑफ कोड का जो वेबसाइट था, एवरीथिंग, दिस वेबसाइट इज आल्सो ओपन सोर्स. ओके, so this is basically about open source. So this year I also have a, you know like a project in girls club summer of code. So आप लोग चाहो तो इस वाले प्रोजेक्ट पे भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हो. So इसके बारे में डिटेल्स आपको वहीं पे मिलेंगे. So this is kind of a what do you say? अरे, I need a word. Suspense, yes. So this is kind of a suspense. You can also contribute to this project. So yeah, that I guess more or less about girls get summer of code. So now I think any open questions you guys want to ask. Yeah, if you guys have any question, please go ahead. और should we first show the, मतलब पहले वो दिखा दे, मतलब application form. Should we show the application form? What do you think? हाँ, you can show the application. Yeah. ओके, फिर मैं प्रोसीजर दिखा देती हूँ फिल करने का फॉर्म, और मैं लिंक ड्रॉप भी कर दूंगी ग्रुप में. Can I तब तक क्या मैं आंसर करता रहूँगा चैट्स में? I guess there are many. Yeah, sure. Okay, so let's start with how much knowledge should one have for open source contribution? Zero. You can start with absolutely zero. Like, मतलब आप, interest is the important thing. If you have the interest, so you don't need knowledge. There are people to teach you. Like the कमी knowledge की नहीं, कमी interest की होती है. जो लोग they who actually doesn't get involved. We will be answering queries. Okay. I mean, which language, which tool, which framework. Okay. So देखो ऐसा, सी any language, मतलब पिछले साल there were projects on C, there were projects on C++, there were projects on Python, Node.js, there were even projects on blockchain. मतलब this year तो I guess there will be for sure blockchain के projects होंगे, decentralized apps and all such things. But last year those concepts were not so famous, but yet there were projects, right? So see, there will be all frameworks, all tools, all languages. So जो मैटर करता है कि तुमको कुछ लैंग्वेज या टूल या फिर कौन से फ्रेमवर्क में कंट्रीब्यूट करना है. एंड मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, लाइक दिस से दे हैव फ्यू प्रोजेक्ट्स लाइक CRUD, लाइक सबसे बेसिक जो प्रोजेक्ट होता है फॉर बिगिनर्स. CRUD आप चाहो तो CRUD में आप CRUD काइंड ऑफ प्रोजेक्ट होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, उस टाइप के प्रोजेक्ट्स में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो. दैट्स द बिग थिंग. अगर आप बिगिनर हो तो इट्स फॉर यू ओनली. Sorry guys, my Wi-Fi crashed. I'll do it. Can you choose any tech stack? In fact, you can make no code. Okay. A second year student, I'm learning all this tech things and have not so much experience so far. I really want to. No, see Demon. I guess you should start participating from this year only. The earlier you start, the better you go. Like. Okay, we'll come back to the question after 2 minutes. Okay. ओके, तो जैसे ये फॉर्म है, इसमें यू हैव टू, आई विल बी ड्रॉपिंग द लिंक इन द व्हाट्सएप ग्रुप. आपने ईमेल डालनी है. आई पुट अ रैंडम ईमेल हियर, abc@.
something. Then okay, email, फोन नंबर डाल दो रैंडम, अपना डालना, मतलब मैं रैंडम डाल रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी फिल कर चुका है। बिकॉज यो सब कुछ सारा जो भी ये होगा ना हाँ कम्युनिकेशन वो तुम्हारे फोन नंबर या ईमेल पे ही आता है। हाँ, आप यहाँ पे जब आप मेन चीज़ ये, जब आप टेक्स्ट स्टैक वगैरह फिल करोगे तो आपको जो भी आपका टेक्स्ट स्टैक है, जैसे HTML है, CSS है, तो यू हैव टू पुट इट विद कॉमा, सिर्फ कॉमा आना चाहिए बीच में, कोई फुल स्टॉप वगैरह कुछ नहीं। वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि ऐसा नहीं है कि तुम जो टेक्स्ट टैग इधर मेंशन करोगे सिर्फ उसी टेक्स्ट टैग में कंट्रीब्यूट कर पाओगे। यू कैन कंट्रीब्यूट टू एनी प्रोजेक्ट विद एनी टेक्स्ट टैग। ये बस आपका एक प्रोफाइल बनाते हैं वो लोग उसके लिए। एंड आई जस्ट वांट टू ऐड वन अदर थिंग, लाइक आप में सब कोई लाइक ऐसे होंगे जो अभी लाइक प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया होगा, लाइक आइदर पाइथन या फिर C++। सो अगर आप स्टार्ट किए हो पाइथन या फिर C++ किसी में भी, तो बस राइट डाउन C और C++, एंड मे बी पॉसिबल है कि आपको वही प्रोजेक्ट मिल जाए वैसा कुछ जिसमें आप C या फिर जो भी आपका उसके थ्रू आप कर सको कंट्रीब्यूट उसी लैंग्वेज की यूज करके। अब जब नेक्स्ट पेज आएगा इसमें आपको रीजन लिखना होगा, व्हाई डू यू वांट टू पार्टिसिपेट। तो मेन आप ये लिख सकते हो कि इट विल हेल्प मी इन स्किल डेवलपमेंट, इट विल एनहांस माय रेज्यूमे, आई विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, या जो भी आपका रीजन आपको सही लगे। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस प्रोग्राम, यू वांट टू लर्न, यही सब लिख देना। और दिस इज अगर आप एसोसिएटेड हो तो लिख देना यहाँ पे। दिस इज आई गेस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब जो मैनेजर सिलेक्शन या इट इज प्रोसीड्योर काइंड ऑफ होता है ना इम्पोर्टेंट। वो आपके इन्हीं 3 क्वेश्चन के आंसर्स के बेसिस पे होता है। सो मतलब बी ऑनेस्ट एंड डोंट ट्राई टू शो ऑफ इन दिस पार्ट ऑफ द फॉर्म। या I सो guess क्वेश्चन पे वापस आते हैं, क्वेश्चंस पे। I guess there were one more section, right? In the form. हाँ, नो एक नो सेक्शन नो, और है उसमें। ओके ओके ओके। शुड आई लर्न एवरीथिंग एंड अप्लाई नेक्स्ट ईयर? ओके, सो डोंट वेट, अगर स्टार्ट करना तो अभी करो, जैसे कि शुभम ने बताया। ओके, लाइक अभी जितना जल्दी तुम स्टार्ट करोगे उतना बेटर है। First year doing web development. Please tell me the roadmap. रोडमैप भी है, पहले जीएस सॉफ्ट में अप्लाई करो एंड वो तुमको रोडमैप दिखा देगा। यू विल गेट योर पर। एंड जीसॉक डिस्कॉर्ड, के लिए या जीसॉक के लिए जीसॉक के लिए फिर इसी ईयर में मतलब फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर दूं? हाँ ऑब्वियसली देयर इज नो, देखो तुम फर्स्ट ईयर में करोगे ना तो वह सेकंड ईयर में जब पीपल्स को पता चलेगा जीएस सॉफ्ट के बारे में, ठीक है, तब तक तो तुम जीसॉक के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे। डिफरेंस समझ रहे हो? यू तुमसे सब कोई एक ईयर पीछे चल रहे होंगे। यू आर इन फर्स्ट ईयर एंड यू आर इन दिस सेशन राइट नाउ, दैट इज अ अचीवमेंट। मेरे को फर्स्ट ईयर में नहीं पता था ऐसे। अच्छा ओके, अगर सपोज मैं आज जीसॉक के लिए अप्लाई कर देता हूँ आज ही, तो उसके बाद का रोड मैप लाइक मतलब क्या करना है क्या नहीं करना? क्या करना है देखो, तुम जीएस सॉफ्ट में तुम आज अप्लाई किए, ठीक है, तो यू विल गेट द कंफर्मेशन मेल कि यू आर सेलेक्टेड एज अ पार्टिसिपेंट। तो ये आपको आ जाएगा 25 फेब के आसपास, ठीक है। एंड तब आपको एक डिस्कॉर्ड का लिंक भी उसी मेल पे अटैच रहेगा। यू ज्वाइन द डिस्कॉर्ड चैनल, वहाँ पे आपको सारे अनाउंसमेंट्स सब कुछ मिलेंगे। देन आपको, मैंने जहाँ तक कि आपको बताया था कि एक प्रोजेक्ट्स का इनके वेबसाइट पे सेक्शन है जो कि अभी कमिंग सून लिखा हुआ है, बट इट विल बी अवेलेबल, राइट। सो आप वहाँ पे जाके अपना जो भी प्रोजेक्ट आप चूज करना चाहते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट आप अपना प्रोजेक्ट चूज करोगे। या सो आप बेस्ड ऑन दैट आप अपना प्रोजेक्ट चूज करोगे एंड देन फिर वहाँ का जो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का एक डिस्कॉर्ड चैनल होगा या फिर एक डिस्कॉर्ड सर्वर होगा अलग से पूरा, ठीक है। सो उसके बेसिस पे आप मतलब वहाँ पे आप प्रोजेक्ट एडमिन्स होंगे, प्रोजेक्ट मेंटर्स होंगे, तो आप उनसे बात करके दे विल टेल यू कि आपको ये सीखना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करने के लिए। कहाँ से सीखना है ये भी वही वही लोग बता देंगे कि आप यहाँ से ये रिसोर्सेज फॉलो करके सीख सकते हो एंड ऑल सच थिंग्स।
Okay, so just follow them. There are people to help you. So there are a lot of people to help you there. तो अगर भैया आप 25th जैसे आपने डेट बताई 25th फेब के आसपास भी एक ऐसा सेशन रख लो जिसमें आप हमें गाइड कर दो तो बहुत अच्छा होगा। गाइड कर दो इन द सेंस, देखो वहां से जो विल, देखो मेरा जो प्रोजेक्ट होगा ना, सिर्फ मेरा प्रोजेक्ट का एक अलग से सर्वर होगा, राइट? तो वहां पे उस वाले प्रोजेक्ट के लिए मैं रखूंगा, बिकॉज उसके बाद जो होगा ना तुम्हारा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होगा, तुम 3-4 प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करोगे, तो सब प्रोजेक्ट का अलग अलग टेक स्टैक होगा, उन लोगों का अलग अलग क्या कहते हैं, अलग अलग चीजें तुमको सीखनी पड़ेंगी टू कंट्रीब्यूट इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। ओके, सो तुम्हारा जो प्रोजेक्ट मेंटर होगा या तुम्हारा जो प्रोजेक्ट एडमिन होगा, ठीक है, वो तुमको बता पाएगा कि उस वाले प्रोजेक्ट के लिए तुमको क्या करना है या क्या सीखना है या कैसे करना है। ओके, एंड बाकी इशूज कैसे क्रिएट करने हैं, कैसे असाइन करवाना है, वो सब तो दिखा दिया मैं अभी। Yeah, और बाकी लाइक and अगर हम go ahead. और बाकी अगर हम लाइक प्रोजेक्ट्स अगर सॉल्व करें और उसके बाद मतलब अगर हमसे सॉल्व होते रहें, अगर नहीं हुए मतलब अगर सपोज सॉल्व करते जाए हम तो उसके बाद हमारा मतलब कैसे बेटर डेवलपमेंट कैसे होगी? तुम जितना सॉल्व करते जाओगे, यू विल कीप लर्निंग, यू विल कीप ग्रोइंग। देखो तुम अगर कोई चीज सॉल्व करोगे ना, तो तुमको उसमें कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिलेगा। एवरी टाइम यू सॉल्व एनी डैम थिंग, यू विल लर्न अ स्मॉल थिंग ऑलवेज। सो तुम जितना सीखते जाओगे तुम्हारा वो डेवलपमेंट होता जाएगा, एंड डोंट स्टॉप। ठीक है, मतलब गर्ल्स के समर ऑफ कोड तुमको एक एक्सपीरियंस देगा कि ओपन सोर्स एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो विद इन गर्ल्स के समर ऑफ कोड तुम्हारे पास 100 या 150 प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें तुम अप्लाई कर रहे होगे। ठीक है, उसके प्रोजेक्ट एडमिन्स पे, प्रोजेक्ट मेंटर्स पे जो तुमको हेल्प कर रहे हैं। बट व्हेन यू विल कम आउट ऑफ कर्सिव समर ऑफ कोड ना, पूरा का पूरा गिटहब में जितने प्रोजेक्ट्स हैं, दैट इज योर प्रोजेक्ट पूल। आप कोई भी प्रोजेक्ट चूज कर सकते हो, किसी भी प्रोजेक्ट में आप जाके इशू क्रिएट कर सकते हो, उसमें पीआर डाल सकते हो, एंड पीपल विल बी देयर जो आपको बताएंगे कि तुम्हारे कोड में ये गलती है या फिर इसको सुधार सकते हो। तो ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, इट साउंड्स काइंड अजीब लगेगा कि पूरा गिटहब में मैं कैसे कोई भी प्रोजेक्ट पे जाके पीआर डाल दूं, राइट? बट व्हेन यू विल कम आउट ऑफ कर्सिव समर ऑफ कोड, यू विल बी यू विल बी, तुमको लगे अच्छे तो काफी कॉमन चीज है। योर दिस मेंटालिटी विल चेंज। जस्ट एंजॉय दिस 3 months ऑफ कर्सिव समर, खुद ही समझ में आएगा। डिफरेंस देखना, खुद को ही देखना। थैंक यू सो मच शुभ भैया। Hmm. कैन यू Okay. प्लीज ड्रॉप योर फोन नंबर इन द चैट सेक्शन? फोन नंबर, ओके श्योर। Okay, हम like we will sharing his LinkedIn ID, हाँ LinkedIn profile in WhatsApp group or in the chat. Shubham, go. You can share your LinkedIn. Okay. Here. हाँ ठीक। From there आप कांटेक्ट कर सकते हो उनको। एंड लाइक किसी ने पूछा था लाइक डिस्कॉर्ड का लिंक, सो अगर आप फिल करते हो फॉर्म एंड इफ यू गेट सेलेक्टेड, यू विल बी डेफिनेटली रिसीविंग एन कंफर्मेशन मेल विद इन 1 वीक, एंड जिसमें आपका डिस्कॉर्ड का लिंक भी रहेगा उसी में ही। एंड एंड प्लीज डोंट सेल्फ रिजेक्ट योरसेल्फ, मतलब इसमें सिलेक्शन के चांसेस काफी हाई होते हैं क्योंकि दे नीड मोर पार्टिसिपेंट्स, दे नीड मोर कंट्रीब्यूटर्स। बट शुभम, मेरा खुद का भी एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें विद द फ्लो, विद द प्रोजेक्ट जैसे जैसे चल रहा होता है हमें सीखनी पड़ती है चीजें, तो हाउ डू वी मैनेज दैट? जैसे मुझे मतलब एक चीज करने में 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं, वो भी ढंग से नहीं हो पाता, तो हाउ ओके, डू वी मैनेज दैट? सी एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे कि एक सर्वर है, ऑलरेडी हम लोग का एक सर्वर है, ठीक है, वो सपोज एक्सप्रेस जेएस पे, ठीक है, एंड आपको उस पर एक नया एपीआई ऐड करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पूरा एक्सप्रेस जेएस सीखने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपको पहले से 2-3 एपीआई बनी रहेगी। यू कैन जस्ट आप वो कोड पढ़ के समझ सकते हो कि इस कोड में एक्चुअली ऐसा हो रहा है, एंड यू कैन जस्ट कॉपी पार्ट समथिंग एंड अंडरस्टैंड दैट थिंग एंड पुट आप उसको तुरंत लाइव आप इम्प्लीमेंट करते हुए सीखते हो। ठीक है, आप जो बोल रहे हो कि आपको सीखने में 1 महीना लगता है, 2 महीना लगता है, तो आप 1-2 महीना चीजों को बस आप सीख रहे होते हो, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते। बट जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हुए सीखते हो ना, तो वो एक्चुअली बहुत फास्ट हो जाता है प्रोसेस। एंड व्हेन यू ऑलरेडी हैव अ रनिंग कोड उसी चीज का, ठीक है, कि एक दूसरा एपीआई है जो काम कर रहा है, एक दूसरा प्रोग्राम है जो सेम चीज है जो काम कर रहा है, अगर आपके पास एक ऐसा रेफरेंस होता है, तो वो प्रोसेस और फास्ट हो जाता है, एंड ऑब्वियसली यू हैव मेंटर्स एंड आल्सो थिंग्स टू always support you. okay, थैंक there यू। is a question, Shubham. Sometimes all issues have been taken up.
or any issue which I want to work, but these were assigned a long time back to someone else. हाँ, this is a very common problem. क्या होता है कि like पहले से वो issue किसी पे assigned होता है, but you want to work on that. And होता ये कि like generally अगर कोई एक particular issue मतलब एक particular इंसान पे like बहुत दिन से assigned है, you can tell the जो maintainer है उनको कह सकते हो कि please assign me, क्योंकि मैं इस पे काम कर सकता नहीं, it's taking a long time. You can या tell him. लॉन्ग टाइम या फिर सो सी एक चीज है कि नोबडी इज दे आर ऑन द सेम प्लेन, राइट? सो ऐसा नहीं है कि वो तुमको इसलिए असाइन कर देगा बिकॉज ही इज टेकिंग अ लॉन्ग टाइम, ओके? क्योंकि सबको वहाँ पे सीखने के लिए आए, एंड एवरीबडी द लर्निंग स्पीड ऑफ एवरी पर्सन वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो द ओनली रीजन ये नहीं होगा कि वो उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, दैट्स व्हाई ही विल असाइन यू. देयर कैन बी रीजंस लाइक वो बंदा उस रेस मतलब if you will raise something like this, no, ki this person is taking a lot of time, I can do it in much faster. So what the project admin will do, he will basically फिर से उसको टैग करके कमेंट डालेगा कि एक कमेंट डालेगा कि प्लीज समथिंग लाइक व्हाट इज द अपडेट, और ही विल आस्क फॉर अ अपडेट, ओके? एंड इफ दैट पर्सन डज नॉट रिस्पॉन्ड, इफ वो पूरा गायब हो जाता है, उसको उस इशू से कोई मतलब नहीं है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो तुमको मिल सकता है, ओके? और else आप कोई और इशू ढूंढ सकते हो. या और ऐसा नहीं है कि अगर इशू पहले से नहीं है तो आप उस पे मतलब क्या कहते हैं, तो आप उस प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते. आप वो प्रोजेक्ट डाउनलोड करो, आप उस प्रोजेक्ट को यूज करो, एंड यू कैन आप खुद से इशू रेज कर सकते हो. मतलब अगर आपको दिख रहा है कि उसका एक फंक्शन है जो कि ऐसे काम करना चाहिए बट वो ऐसे काम कर रहा है, इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो यू कैन रेज द इशू. एंड जब आप इशू रेज करते हो तो मोस्टली वो इशू आपको खुद को असाइन होता है. या तो डीमन ने एक क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में कि अगर आपको कुछ नहीं आता, मतलब आप अभी सीखना शुरू किया है आपने, जैसे आपको सपोज बेसिक HTML वगैरह आता है, ज्यादा कुछ नहीं आता, तो कैन यू पार्टिसिपेट इन GS? ऑब्वियसली. एंड लाइक जैसे मुझे तो पता है कि बेनिफिट्स क्या होते हैं ओपन सोर्स के, इवन नयन इज अ कंट्रीब्यूटर इन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स. तो आप दोनों के हिसाब से क्या बेनिफिट्स रहे हैं आपको विद in contributing to open source? Okay, I would just like both of you to talk about it. Okay, so मेरा अगर मैं बोलूं, सो ओपन सोर्स का लाइक कॉलेज पे यूजुअली व्हाई डू पीपल वर्क, दे वर्क फॉर प्लेसमेंट. सबको प्लेसमेंट चाहिए एट द कॉलेज, ओके? सो इन योर रेज्यूमे ना आप अपना पर्सनल प्रोजेक्ट्स रख लो, आप अपना वर्क एक्सपीरियंस रख लो. वो वेट मैप का होता है ना, वो तोलने वाला, ठीक है? तो आप एक साइड पे सारे पर्सनल प्रोजेक्ट्स, सारे वर्क एक्सपीरियंस रख लो, और एक साइड पे एक ओपन सोर्स एक्सपीरियंस रख लो, वो बैलेंस कर देगा. तो इतना ज्यादा एक इम्पोर्टेंस होता है एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का. एंड गर्ल्स के समझ ऑफ कोड में तो आप ऐसे हजारों मतलब नॉट हजारों, 5-6 प्रोजेक्ट्स पे तो ऐसा कंट्रीब्यूट करोगे, सो इट विल क्रिएट अ इम्पैक्ट. जब आप इंटरव्यू को बोलते हो ना कि आई वर्क इन ओपन सोर्स टेक्नो, मतलब मैं ओपन सोर्स में काम करता हूँ, तो ही विल लाइक ओके यू वर्क इन सोर्स, लाइक ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है, यू गेट दैट ओवर एज. एंड आपको नेटवर्किंग का सबसे बड़ा वाला नेटवर्किंग का मौका मिलता है. दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. एंड उसके अलावा लाइक यू विल बी गेटिंग टू वर्क इन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब वो एनवायरनमेंट ऐसा होगा जो कि डिप्लॉयड होगा या फिर डेवलप हो रहा होगा. लाइक एक कंपनी में जाकर आप जो काम करोगे वो घर में बैठ के ओपन सोर्स में आप कर पाओगे एज अ कंट्रीब्यूटर. दिस इज अनदर लाइक ह्यूज बेनिफिट. एंड अगर बहुत सारे होता है कि लाइक बहुत सारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लाइक बिग प्रोजेक्ट्स, वो क्या करते हैं, दे समटाइम्स ऑफर इंटर्नशिप और फुल टाइम जॉब टू देयर कंट्रीब्यूटर्स. फॉर एग्जांपल जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी कर रहा हूँ कंट्रीब्यूट टू जीना AI, इट्स अ न्यूरल सर्च ऑर्गेनाइजेशन. तो इफ दे फाउंड माय कंट्रीब्यूशंस लाइक वेरी गुड, अगर उनको लगता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, तो दे डेफिनेटली ऑफर मी एन इंटर्नशिप और अ फुल टाइम जॉब आफ्टर माय ग्रेजुएशन. So these are the benefits. हाँ, सबसे बढ़िया जो बेनिफिट मुझे ना प्रोजेक्ट्स का यही लगता है, यू गेट टू मीट वेरी गुड एंड टैलेंटेड पीपल, जिससे आप फ्यूचर में भी बोल सकते हो अगर हेल्प वगैरह चाहिए हो या कुछ भी सीखना हो. या फिर अगर तुमको रेफरल चाहिए तो सोने पे सुहागा हो गया. अच्छा, खुशी इज आस्किंग कि व्हाट शुड बी अ गुड लेंथ ऑफ दोस 3 क्वेश्चंस. मैंने तो एक पैराग्राफ लिखा है वैसे.
बस Good length, yeah, like paragraph, one paragraph for each question, like around by 150 words, 100 words, 50 words, like 150 50, words. 100, 75, 150. Okay. Yeah, So can we contribute to more than one project in GSOC? obviously. Yes, yes, yes. This is not like GSOC. यहाँ पे आपको एक project assigned होता है. You can work on any project you feel to. So, and you can contribute. On which factors do we get selected? वो 3 question के जो answers हैं. Your passion for open source, how much you want to learn, and that's it. कितना आप कम्युनिटी को वापस देना चाहते हो. एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच आई मिस थ्रूआउट दिस थिंग इज व्हाई शुड यू कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स. लाइक आपको क्या फायदा होता है, राइट? सो आपने जब आप डेवलपमेंट प्रोसेस पे आओगे ना, ठीक है, तो आप देखोगे कि सारा चीज आप खुद से नहीं बनाते हो, ठीक है. देर आर मॉड्यूल्स होते हैं, वो आप डाउनलोड करते हो एंड आप बस उसके फंक्शंस कॉल कर रहे होते हो एंड आपका काम हो जाता है. दैट इजली, राइट? तो वो मॉड्यूल जो है वो कोई ना कोई तो लिख रहा होता है ना कहीं से, तो वो मॉड्यूल बन रहे होते हैं, राइट? जो आप इंपोर्ट करके अपने कोड में यूज कर रहे होते हो. तो जस्ट इमेजिन करो, ओपन सोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ठीक है. तो अगर आपको एक पाइथन में कोड लिखना है ना, तो आप पहले आपको पाइथन का कंपाइलर लिखना पड़ेगा, फिर आप पाइथन का लैंग्वेज बनेगा वहां से एंड फिर आप उसके ऊपर कोड करोगे, ठीक है. तो अगर आप पाइथन पे कोड कर रहे हो ना, इसका मतलब आप ओपन सोर्स कम्युनिटी की चीजें यूज कर रहे हो. अगर आप नोड जेएस यूज कर रहे हो, अगर आप वीएस कोड में कोड कर रहे हो, वीएस कोड खुद एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, ठीक है. तो अगर आप वीएस कोड यूज कर रहे हो, इसका मतलब आप एक ओपन सोर्स कम्युनिटी का चीजें यूज कर रहे हो. तो जब आप एक कम्युनिटी से इतना कुछ ले रहे हो ना, तो इट्स अ जनरल थिंग कि आपको वो चीज वापस देनी चाहिए, ठीक है. अगर आपको उस कम्युनिटी से कुछ मिला है, सो ट्राई टू गिव इट बैक. दैट शुड बी द मोटिव टू वर्क इन ओपन सोर्स कम्युनिटी. एंड बाकी सब है जो वो एड ऑन्स है, सीखने को मिल रहा है, रेफरल्स मिल रहे हैं, नेटवर्क ग्रोथ हो रहा है आपका, राइट? बाकी सब एक्सेंट मतलब एड ऑन्स है. दिस इज द मेन थिंग कि what you have got from the community you should get मतलब वापस देना चाहिए. Okay. With newly GitHub, can a There's beginner another get question. selected? या एक क्वेश्चन है योगेश का. विथ न्यूली गिटअप कैन बिगिनर गेट सेलेक्टेड? अगर किसी को गिटअप नहीं भी आता तो वो भी सेलेक्ट हो सकता है. लाइक यू शुड नो फ्यू थिंग्स. अगर उसको कंट्रीब्यूट करना है तो उसको जस्ट फ्यू, इवन आपको चाहिए भी नहीं, क्योंकि अभी वी हैव VS कोड में पहले से गेट आ चुका है, गेट एंड गिटअप. देन गिटअप का खुद का गिटअप डेस्कटॉप आ चुका है. आपको गिटअप के जो कमांड्स होता है आपको जानने की भी जरूरत नहीं, बट टू बी इन द सेफर साइड आपको जाननी चाहिए गिटअप के कमांड्स. तो स्लोली आप कि जो मेंटर्स होते हैं वो आपके लिए ऐसे सेशंस एंड ऑल सच थिंग्स लाते रहते हैं, जहाँ पे आपको ये सब चीज वो लोग खुद से बैठ के सिखाते हैं कि कैसे इशू रेज करना है, कैसे PR रेज करना है. मतलब ये सब जो पूरा गिटहब का जो पूरा फ्लो होता है, ये वो लोग आपको इस 3 महीने के बीच में ही सिखाएंगे. तो एकदम मतलब सीधा इंटरेस्ट इज इम्पोर्टेंट है भाई. मैं बोल रहा हूँ कि स्किल्स आना जरूरी नहीं है, तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए. इफ यू हैव द इंटरेस्ट यू कैन ऑलवेज गो अहेड. एंड अभी जितने भी कैंपस एम्बेसडर्स है ना, वो लोग भी गेट एंड गेटअप पे काफी क्या कहते हैं करवा रहे हैं सेशंस वगैरह. तो इफ यू वांट मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी उनकी लिंक्स वगैरह. और जब प्रोग्राम शुरू होगा ना, तो उसके बाद में भी ऐसे सेशंस होते रहते हैं, जैसे बताया शुभम ने कि सेशंस मेंटोर्स भी करवाते हैं, वैसे ही जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी करवाएंगे. तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. फिर से कोई पूछ रहा है, how to contribute as a non-tech? Okay, Nayan's question first. हाँ, ये that's a good question. How to contribute as non-tech? तो शुभम आप आंसर करना चाहोगे? नहीं आप करो. Okay, so हाँ, तो नॉन टेक अगर देखा जाए, there's a lot of documentation. अगर तुम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो अगर तुम्हारा एक प्रोजेक्ट है तो दूसरे उसको आके यूज करेंगे, तो उनको समझने का डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है. उसको पता चलेगा प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन से प्रोजेक्ट क्या करता है, इसमें क्या टेक स्टैक है, हम इस प्रोजेक्ट को कैसे यूज करेंगे, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन में ही होता है. सो एज अ नॉन टेक यू कैन यूज द प्रोजेक्ट, फिर आप उसका डॉक्यूमेंटेशन लिख सकते हो, उसके बारे में लिख सकते हो. अगर आपको उतना समझ नहीं आ रहा, देन यू हैव अनदर थिंग लाइक यू हैव टू
लाइक आप ट्रांसलेशन होता है बहुत से प्रोजेक्ट में, लाइक कुछ होते हैं प्रोजेक्ट, बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उनके उनके जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं। अगर आपको कोई और लैंग्वेज आता है, यू कैन ट्रांसलेट इट टू एनी अदर लैंग्वेज। सो दिस इज नॉन टेक कंट्रीब्यूशन। अब उसको किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आप दे रहे हो उनको, एक इशू क्रिएट कर रहे हो कि आई कैन ट्रांसलेट दिस। अगर उनको चाहिए पहले से इशू है, देन यू कैन डू दैट, और एल्स यू कैन क्रिएट योर ओन इशू। एंड फिर आप लाइक यू वर्क ऑन दैट इशू, आप बनाओ एक उसको ट्रांसलेट करके दूसरे लैंग्वेज पे बनाओ, देन यू सेंड द पुल रिक्वेस्ट एंड दे विल डेफिनेटली मर्ज इट इफ दे कंसीडर योर कंट्रीब्यूशन एज वैलिड। अदर देन दैट, अगर आपको इनिशियली नहीं आता है एनीथिंग रिलेटेड टू टेक, तो आपको जितना कुछ आता है आप वो तो करो। ऑल्दो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे तो फ्रॉम अ बीटेक स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही। व्हाई डोंट लर्न इट ऑन द वे, तभी आपको एक्चुअली बेनिफिट होगा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स का। Sir, presently I am first year and have a good knowledge of C and Java, but have no knowledge of GitHub. Should I proceed further? So obviously अगर आपको C and Java आता है तो sure आप करो। And as Shubham said, like there will be a lot of sessions, mentors करेंगे sessions जिसपे Git and GitHub के बारे में बताएंगे। So and उसके अलावा you have the GUI part, बिना Git के आप कर सकते हो। So definitely proceed further। Shubham, what was माइक की परमिशन दे दो डीमन को। हाँ ओके, दिया हुआ है, आई गेस सबको दिया हुआ है। या You can turn on your mics and ask your questions. okay? Somebody is asking Shubham, what was your first PR about? Very good question. मेरे को याद भी नहीं है. Let me just check. 1 second. It doesn't matter किस चीज से related है. It was a PR that matters. So मेरा first PR था make file को लेके, like डायनामिकली, मतलब जो मेरा जो प्रोजेक्ट है रॉकेट सीपी, तो उस पे जो मेक फाइल था। ओके, सो व्हाट इज मेक फाइल इज बेसिकली एक लाइब्रेरी है जिससे व्हाट डू वी से हम लोग बेसिकली सी के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना उसको कंपाइल करने के लिए वी यूज मेक फाइल। ओके, सो एक मेक फाइल था तो उसमें स्टैटिक मेक फाइल यूज हो रहा था। सो व्हाट आई डिड इज दैट आई कन्वर्टेड दैट स्टैटिक फाइल इनटू डायनामिकली कॉन्फ़िगरेबल स्टैटिक फाइल, means make file. So that was my first PR all about. Can we also get internship from GSOC? Okay. Yes, you can get internship from GSOC. After the completion of this, there is you get around so top 50, no, top 25 participants actually get internship opportunities. Means you get referrals kind of a thing, मतलब you get a form जहाँ पे आप अपना resume, experiences वो सब डाल देते हो, and then they share it to different companies, and if that companies are interested in you, then they will call you. And for those like जो question पूछ रहे हैं ऐसा कि I'm complete beginner and I know this language or this framework, then yeah, you can participate. There's no such limitation. You can participate as we already said कि अगर आपको आप टेक बैकग्राउंड के नहीं हो and you know like documentation and all, आप उनमें कर सकते हो contribute. So this is for everyone. Yes. What is full time and part time contribution? There is nothing like ऐसा नहीं क्या full time and part time, मतलब it's not like अगर आप full time contribution करो तो आपको पूरा time available रहना, it's not nothing like that. There is concept of a maintainer and concept of a contributor. Okay, so जब आप externally एक project पे contribute करते हो, कि suppose Electron एक project हुआ, तो when you are contributing to that, you are a contributor to it, right? And the people who are there, within the team of Electron, who are actually जब आपका PR देख रहे हैं कि सही है कि नहीं है, गलत है कि नहीं है, right? तो वो लोग जो है they are actually the maintainers of the क्या कहते हैं उस प्रोजेक्ट्स के। या सो एंड उनका काम होता है वो लोग सारा दे डोंट डू एक्चुअल जॉब, इंस्टेड वो लोग सारा दिन ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो दैट्स तो तुमने जो देखा है लिंक्डइन प्रोफाइल पे, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली, कि कुछ लोग सारा दिन ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वी मिस दैट जब ओपन सोर्स पे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हो यू एक्चुअली गेट स्पॉन्सर्स। सो स्पॉन्सर्स आपको हर महीने अराउंड 10,000 20,000 ऐसे ही देते हैं फॉर योर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस।
इसलिए उन्हें जॉब की जरूरत नहीं पड़ती, दे डू ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। For there those are a who couple of students saying कि उन्होंने एक लाइन ही लिखी है और the answers. so देखो प्रोबेबली आपको मिल जाएगा, चांसेस होता है कि मेनली पार्टिसिपेंट्स में उतना वो फिल्टर नहीं करते, ठीक है, तो प्रोबेबली आपको मिल जाएगा, लाइक देयर इज अ ह्यूज चांस कि आपको मिल सकता है। मेनली मेंटर्स में होता है ये है कि लाइक वो दे टोटली लुक इनटू द टेक स्टैक एंड क्या क्या मैसेज लिख रहे हैं मेंटर्स में, तो उसमें ज्यादा मुश्किल होता है एज सेलेक्ट होने का, बट पार्टिसिपेट में हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इवन आई गेस मैंने भी 2 लाइन ही लिखे हैं। मैंने भी एक में एक पैरा लिखा है, एक में 1-2 लाइनें लिखी है, बाकी I'll ask the organizers, अगर कुछ Yeah. होगा एडिट वगैरह का तो मैं ग्रुप में पेस्ट कर दूंगी, आप देख लेना। Guys, any other questions? Harsh, you have mentioned, sir, please answer my question. Like, you can turn on your mic and say. Actually. He asked like how to manage time between college studies and open source contribution. Okay. So, see, ये मेरे को नहीं पता because in my, मेरे साइड पे क्या है कि कॉलेज इज एज द लीड्स प्रायोरिटी, ठीक है। मैं बाकी दुनिया के 1000 काम कर लूंगा, कॉलेज का मेरे को कोई पढ़ा नहीं रहता है, so मेरे को नहीं पता लोग कैसे करते हैं। मतलब मैं कॉलेज को मान के नहीं चलता। So that is why मेरे को इसका आंसर नहीं पता है सीरियसली। Okay, you can do one thing. You can do one thing, like अगर there's an issue with college, then you can like 3 month का प्रोग्राम है, तो you have like more than 10 Sundays, like more than 10 Sundays and more than 10 Saturdays. So आपको like mainly I guess 30 दिन तो आपको मिल ही जाएगा फ्री, I guess. तो उनमें आप जितना हो सके कंट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि लर्निंग के लिए आप there's no such thing like आपको करना है, आपको लीडर बोर्ड पे आना है, आपको अगर लर्निंग के लिए तो डेफिनेटली या 30 days is enough. I guess Mannat is asking for the recordings link. Okay. I'll share Yeah, that. Don't worry. Yeah, I'll share the recording in the group. Yeah. Okay, any other questions? Guys, if there are any other questions, बताइए. Otherwise, we'll drop off. Okay, so thank you, Shubham, for giving us your invaluable time and sharing your experience and knowledge. And I would also like to thank our audience for being patient and calm. Seriously, very calm. And the deadline for exactly. So the deadline for registration has been extended till 25 February, जैसे कि हिमिका ने बताया 25 February तक आपके पास टाइम है। And for अगर आपको like if you think like you have pretty good knowledge and आप guide कर सकते हो दूसरों को, then please go for the mentor. उनके डेडलाइन आई गेस 25 तक है। 25 हम सबका लिंक शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, लाइक मेंटर का, पार्टिसिपेंट का, एंड एज अ प्रोजेक्ट के लिए भी हम शेयर कर देंगे। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन एंड गुड नाइट एंड गुड बाय फॉर नाउ। थैंक यू सर। टाटा। बाय बाय। Thank you so much. Please participate and Yeah, do please participate. नहीं आता तो भी जाओ. You learn a lot. Because this is the time, मतलब अभी अगर आप स्टार्ट करोगे अपना जर्नी तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। देखो बाकी डोजन तो कैंपस एम्बेसडर है, वो लोग पार्टिसिपेट लाएंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा उन्हें। मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ प्लीज पार्टिसिपेट। Yeah. So thank you so much. Goodbye. Goodbye. Goodbye, Good everyone. night. All the best. Yep.